listen. Just pay attention. इस सवाल का जवाब मैं भी दूं? हाँ? Shut up and listen to them, and you would. It was like a school. नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। I have last 2 questions. नमस्कार, मैं आशुतोष राणा और आप मुझे देख रहे हैं बॉम्बे टाइम्स ऑनलाइन पर। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह राजपूत और आप मुझे देख रहे हैं बॉम्बे टाइम्स ऑनलाइन पर। I was wanting to meet Abhishek for a very long time. Big fan of him. And I remember I was shooting for a film. I just got a call from him and he said that कि मिलना है और मुझे लगा कहीं फिल्म के लिए हो तो क्या बात। And he met me and he read the first page. And of course the world was so fascinating, interesting. You immediately know as an actor that it will be just not very slightly difficult to do the film, but the very same process would have you learning a lot. And you will end up becoming a better actor. So the potential is there. And so मैंने सर को बोला कि sir, if you want to waste time, you can, but I'm on. So I immediately said that, read the script the very same day and called him same night saying that I hope you were serious. And I'm very, very on for this film. And it was such an honor to work with greats like him, Manoj sir, Ashutosh sir. I mean, like, you can just keep shut up and listen to them and you would. It was like a school, but not felt like a school. Felt like a candy store. So that. देखिए, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसके पास दुश्मन, संघर्ष, राज, शबनमोसी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मेरी ज़िंदगी में मिलते रहे हैं। तो एक लंबा हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद एक बीच पे एक ऐसा पीरियड आया कि जब I was also looking for that same kind of opportunity, or suddenly one fine day Abhishek Chaubey, he called me and he told me कि sir, there is a role for you और ये एक ऐसा है तो आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तुरंत गया उनके ऑफिस और सुना, और सुनने के बाद तो उनसे कहा कि आई एम ऑन। और जो वीरेंद्र सिंह गुज्जर है सोनचरैया की, सबसे अच्छी बात होती है कि कभी कभी आपको रोल बड़े अच्छे होते हैं लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती। और इस फिल्म की खासियत है सोनचड़िया की कि इसकी स्क्रिप्ट तो बेहतरीन है, इसका डायरेक्टर बहुत शानदार है, इसके डायलॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और साथ में कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही कमाल के कैरेक्टर हैं। और मुझे लगा कि एक लंबे अरसे के बाद दुश्मन संघर्ष की लाइन में वीरेंद्र सिंह गुज्जर की जो इंटेंसिटी है और जो उसका एटीट्यूड है वो वापस उसी एरा में मुझे ले जाके खड़ा कर देगा। Please imagine the kind of excitement I would have, because we have watched in those films and we have experienced what we have experienced, and suddenly I'm not supposed to think about all those things but just about the character, but I am in the same film, in the same shot, and witnessing the same thing, the same kind of prowess as an actor. So it was so easy for me that I just need to pay attention and react in a way that I've prepared my role, and I would end up becoming a good actor, you know what I'm saying? So it was just not very fascinating. It was such a learning experience that मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सीख रहा था, जो कि कमाल की बात है। As an actor, we are not supposed to think about any other thing other than what the character is thinking at that point in time. And you can have options, you can have better choices, you can have a way, a style to it, and base it on subtext, on nuances. But these are the things that are dynamic. But other than that, you cannot be thinking about anything else. That will be completely devastating for the filmmaker, for the character, for the script. So we knew this. I think the whole preparation जो हम कर रहे थे sir, the whole preparation was to know what not to do. And in the first 2 or 3 points, it was very clear that I wrote that listen. Just pay attention, and your job will be 80% done. और वही हुआ, because we were sure, and I was sure about things that I'm not supposed to do, and then pay attention and react to greats like sir. I see myself in the shot and like how I don't understand how effortless it is, and it's just because I was reacting in the real time, paying attention. So thank you so much, sir. मतलब चूंकि अब राइटर और डायरेक्टर ने अगर आपको नेचुरल चॉइस माना है तो डेफिनेटली
उन्होंने जो उसके अंदर एलिमेंट्स डाले होंगे वो आपको ध्यान में रख के ही डाले होंगे, आपकी कैपेसिटी को ध्यान में रख के डाले होंगे, तो वो हमारे लिए भी उतना ही कंफर्टेबल था, क्योंकि ट्रस्ट एक जो चीज़ होती है वो अपने आप में एक एक्टर को कंफर्ट जोन में ले जाती है, और जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो आपको गलतियां करने का आपको करेज आता है, और जब आपके अंदर गलतियां करने का करेज आता है तो फिर आप ब्रिलियंट होता है। तो ये जो चीज़ होती है, क्योंकि कोई आपको ये विश्वास होता है कि आप गलती भी करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति या जो लोग भी आपसे एसोसिएटेड हैं वो आपको कंडेम नहीं करने वाले हैं, आपके ऊपर हंसने वाले नहीं हैं, वो आपकी इस गलती को एक प्रयास के रूप में लेंगे कि एक कोशिश थी जो हो सकता है कि नाकामयाब रही हो। तो इस फिल्म में हम में से कोई भी एक्टर आपको जिसको ये कहा जाता है कि भाई ये या तो ब्रिलियंट लगेंगे या वर्स्ट लगेंगे, लेकिन जिसको ये मीडियोकर जो एक परफॉर्मेंस होती है कि कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल आपको नहीं मिलेगा कि या तो सुशांत सिंह ब्रिलियंट है, ठीक है, या आशुतोष राणा ब्रिलियंट है, या आशुतोष राणा वर्स्ट है। बीच की जो बात है वो नज़र नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ जो सुशांत ने कही कि चूँकि MS धोनी हमने इनकी देखी है, और एक एज एन एक्टर जब आप देखते हैं तो साथ में आप परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। MS धोनी में कई जगह आपको लगा कि नहीं ये हम नहीं कर पाते, और ये एक्टर जो है जितनी आसानी और सरलता से करके चला गया ये हम ना कर पाते, या हम इस लेवल पे ना सोच पाते इस सीन को जिस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा विषय था कि एक्टर्स लाइक सुशांत, एक्टर लाइक मनोज वाजपेयी जो हमारे दोस्त भी हैं और ब्रिलियंट एक्टर हैं हिंदुस्तान के, फिर भूमि पेडनेकर जो अपने आप में एक चमत्कारिक लड़की है कि अपने आप को तोड़ने से डरती नहीं है, फिर रणवीर शौरी, फिर उसमें जितने एक्टर्स अभिषेक ने कास्ट किए थे वो सारे के सारे थिएटर बैकग्राउंड के थे। तो ये समझ में आ गया था कि आशुतोष आप हीरो के बीच में सराउंडेड हैं, तो आपकी लाइफ तो सुरक्षित है कि अगर आप कांच के टुकड़े भी रहे तो हीरे के बीच में डला रहेगा तो वो ऑटोमेटिक शाइन करेगा और लोग उसको, तो हम ये मान के चल रहे थे। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं रिएक्ट ना करूं, मैं रिस्पॉन्ड करूं। मेरा एज एन एक्टर मुझे रिएक्शन में विश्वास नहीं है, मैं रिस्पॉन्ड करने में विश्वास रखता हूं। तो ज़िंदगी आसान हो गई थी कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, आपको हमें रिएक्ट करना ही नहीं, क्योंकि रिएक्ट में भी एक किस्म का एफर्ट होता है, एक किस्म की कोशिश होती है, और इस फिल्म को कोशिश की दरकार नहीं थी। I can objectively answer this question and with full honesty that it was extreme of situations in terms of weather also. There were times when it was like close to 3 or 4 in the morning, and there were times when it was close to 50 degrees Celsius, and it was for longest of time you can't see no shade, and those ravines were like Maze Runner. Have you seen that film? It's like that. So what I'm trying to say is that, of course, if you look at it from this perspective, it was very, very challenging situation. But the great thing was, and this is honesty, it was so fascinating. The experience itself was so fascinating. It was so much to pay attention to. Sometimes it was so serious. Sometimes it was so fascinating that you never got to know. I was not sitting, and I don't remember a time when I was sitting and thinking, oh, it is so hot. No, but of course it was hot. So yeah, of course that's a great thing. तो था और चुनौतीपूर्ण था, उसको ये कहना चाहिए कि चैलेंजिंग तमाम चीज़ें नहीं हम लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी आपको ट्रैवल करना पड़ता था शूटिंग लोकेशन के लिए, तो आप रात में 3 बजे स्टार्ट करते थे। अगर आपको रात में सुबह 6 बजे शूट करना है तो उस जगह पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे लगेंगे। अगर आपके साथ लोकल हेल्प ना हो तो रेवाइन में, बीहड़ में आप जा तो सकते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से आ नहीं सकते, क्योंकि इतनी भूल भुलैयाँ हैं और एक जैसी हैं। तो लोकल फोर्स और लोकल वहाँ का जो हम लोगों को सपोर्ट मिलता था, 3-3 घंटे पता लगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर आप एक्सट्रीम वेदर में जाके खड़े हो जाते हैं, आपको परफॉर्म भी करना है, ये ध्यान रखना है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में आपकी उस परफॉर्मेंस के अंदर बिहेव
करना लगना चाहिए। और फिर लोकेशन पे पहुंचने के बाद दूर दूर तक वहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट का, चूँकि 1975 के पीरियड की को हम इस फिल्म में लेके आ रहे हैं, तो दूर दूर तक इस्टेब्लिशमेंट की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब तो सड़क पहुँच गई है, बिजली पहुँच गई है गांव-गांव में, तो हमें बिजली के तार या खंबे भी दिखाई ना दें। तो हमारी जो बसेस वैनिटी वैन खड़ी हुआ करती थी, तो पता लगा वो भी आधा किलोमीटर दूर तक वो छिप के खड़ी हुई हैं। तो वहाँ से पैदल पहुँचना अपने हथियारों के साथ, अपने रियल गन्स जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो अपने आप में मुश्किल तो था। दूसरी चीज़, अब बॉडी डबल का इस्तेमाल आप कर लेते हैं अक्सर हम लोग फिल्म में। इस फिल्म में उसकी गुंजाइश ही नहीं थी कि आपको बॉडी डबल जो करना है वो आपको खुद ही करना है। साथ में कभी कभी पता लगा कि इस फ्लोर पे हमको करना है तो इसमें हम नीचे पैडिंग लगा देते हैं, हम एक डुप्लीकेट फ्लोर बना देते हैं कि जिसमें अगर आप नई पैडिंग पहन पाएँ, आप रोल करते हैं, तब भी आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसी भी कोई गुंजाइश नहीं थी बीहड़ के अंदर। तो जो कुछ था चुनौतीपूर्ण था, और चूँकि सब इतने होशियार और अलर्ट थे राइट फ्रॉम, चूँकि हमारी जो टीम का कैप्टन है अभिषेक चौबे, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, वो इतने अलर्ट थे और ये सारी चीज़ें करवाने के पहले वो अपनी टीम के साथ वो सब कुछ कर लेते थे। तो इसलिए हम लोग जब आते थे, वो ट्रस्ट गेम था कि अगर वहाँ पे पहुँचे हैं और इन्होंने कहा कि सर मैं डक करूँगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप डक करेंगे। आप वहाँ से कूदेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कूदेंगे और आप सुरक्षित हैं। तो जो एक ज़िंदगी में ट्रस्ट होना चाहिए, और जब ट्रस्ट होता है पूरी की पूरी टीम के अंदर था, और उसका मैजिक आपको सोनचिड़िया में देखने मिलेगा। Which youngsters like me can understand and learn from this. सर जब हम लोग वहाँ पे थे, हमें पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत यहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मज़ा भी दे सकती है। जैसे हम लोग जब वहाँ शूट करते थे और ठंडी धूप का मतलब क्या होता है ये समझ में आया जब बहुत धूप है और आप प्यास के बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन आपको प्यास लगी है, कोई आपको पानी दे दे तो सिर्फ पानी अच्छा नहीं लगता, वो इंसान बहुत अच्छा लगता है जो पानी देता है। तो वो ग्रेटिट्यूड समझ में आता है। एकदम ही धूप है और एक कहीं हमें ऐसा छाँव मिल जाता था, सब वहाँ पे इतना अच्छा भी लग रहा था, और इतने कम स्पेस में आप इतने सारे लोगों को भर दोगे तो कोई ना कोई चर्चा शुरू हो जाएगी। सो ऑल दोज थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल स्मॉल थिंग्स टू अप्रिशिएट व्हाट वी जनरली गेट and don't remember. I think it makes you a very humble and better and paying attention human being, you know what I'm saying? And basically प्रेजेंट में खड़ा कर देता है। अदरवाइज हम या तो पास्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में हम नहीं होते हैं। तो वो प्रेजेंट सिनेरियो में जब आप खड़ा कर देते हैं, तो एक एक मोमेंट का जो आप एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, एक्नॉलेजमेंट के साथ आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं और एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो वो अपने आप में बड़ा मैजिकल होता है। मेरी इच्छा ही ये रही है, और शायद यही कारण है कि बहुत कम फिल्में भी हिस्से में आती नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि लोग फिल्म इंडस्ट्री विश्वास करके हमेशा कुछ ना कुछ एक अनोखा, कि अगर देखा जाए तो सिम्बा में भी पुलिस ऑफिसर है। सिम्बा जो 2018 की एंडिंग बहुत शानदार हुई, तो 2019 की शुरुआत हम बहुत शानदार करने वाले हैं। तो वो दोनों किरदारों के अंतर आपको नज़र आएंगे, सोनचिड़िया का वीरेंद्र सिंह गुज्जर और सिम्बा का नित्यानंद मोहिले। हैं दोनों खाकी वर्दी में, लेकिन वो दोनों खाकी वर्दियों का इंसान आपको एक अलग इंसान के रूप में, और मेरी कोशिश ये रहती है कि आशुतोष राणा ना दिखे, तो मैं कैरेक्टर को बनाने की जुगाड़ में नहीं रहता, उसकी प्रक्रिया में नहीं रहता कि वीरेंद्र सिंह गुज्जर ऐसा है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसा है वो तो लिखा है, और वो सिर्फ आपने ही देखा, जो डायरेक्टर दिखाएगा वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, लेकिन उस वीरेंद्र सिंह गुज्जर में आशुतोष राणा नहीं दिखना चाहिए। तो हम मिटाने की कोशिश करते हैं, तो उस मिटाने की कोशिश में कुछ किरदार बन जाते हैं। There is not so much seriousness in the craft. Let me be very honest. I like it a lot, and hence I end up paying attention to it, and hence I would probably learn or have a very unique experience that I only can understand. But it is like a game, and we have to understand that all around the world, even education is now gamified.
because that is the best way one can learn anything. So performing arts, acting for me is one of the 13 and 14 things that I've found for myself that I absolutely like as a game. It doesn't mean that I'm not professional or I'm not paying attention. I really want to improve with every take, but it's not what I'm thinking at that point in time. Because I'm so excited, I'm so engaged, they're commanding my attention so much. So there is no I will sit down and I'll prepare for 1 year, these kind of things people would want. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. अगर जो जैसे मैं I'll give you an analogy of a game, video game जो मैं बहुत खेलता हूँ, तो the moment I finish a level, I don't know what's there in the next level, but I am very excited to play with the next level. I'll probably die in the next level in first 10 seconds, but that doesn't stop me from going to the next level. This is exactly what acting is for me. For me to have 6 months of paying attention, I should not know completely how to do it. What's the point then? Yes, I resonate with the script. Yes, I want to work with all these great actors, but I should relate to the character and should not understand how to do it. And that is what I'm paying attention to. That is what I want to really do in my life, or end up doing it. इसलिए आपको अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. जी, क्योंकि एक चीज आदमी देख रहा है, फिल्म मेकर देख रहा है कि यार एक आदमी है जो अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता. सो ये दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर career. Thank you, sir. And there is one thing which in education also, in anything, anybody who wants to learn anything and wants to become anything, और सर इस बात से बहुत ताल्लुक़ रखेंगे. हम देखते हैं कि हम जितना सीखते हैं उतना कम समय लगता है हमें कुछ नया सीखने में. जितना आप ज़्यादा सीखने लगते हैं आपका समय कम होने लगता है कुछ नया सीखना चाहते हैं. तो this is something that we have understood. And this happens when you always pick up characters that are different. मुझे पूरी तरीके से नहीं पता, लेकिन इस बार शायद मुझे पिछली बार से ज़्यादा आसानी होगी समझने में कैरेक्टर. फिर क्या होना है वो तो देख लेंगे सेट पे, वो दूर की बात है. बट यू हैव बेटर चॉइसेस व्हाट योर कैरेक्टर इज़ नॉट. जैसे सर ने बोला मैं अपने आप को बिल्कुल प्ले नहीं करना चाहता, तो कितने वेरिएशंस होंगे सर में जो नहीं प्ले करना चाहते. सो यू नो व्हाट आर द थिंग्स, यू प्रिपेयर फॉर द थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू. व्हाट यू विल एंड अप डूइंग will be the result of paying attention. Sir? और उसका एक जो मुझे समझ में आता है, जो इनमें भी मैंने देखा, भूमि में भी हमने देखा, और जो हमारा अपना तरीका है काम करने का, ये समझ में आया कि मैं ट्रूथ ऑफ द मोमेंट में विश्वास रखता हूँ कि एक कैरेक्टर का सच होता है और एक होता है समय का सच. तो ट्रूथ ऑफ द मोमेंट में अगर आपने अपना 100% दे दिया तो कैरेक्टर का ट्रूथ अपने आप निकल के आ जाएगा. और वही चीज़ जो जब आप देखते हैं कि यार एक सिमिलर अप्रोच है, कि हो सकता है कि इस चीज़ को ये कुछ अलग तरीके से व्यक्त करें, मैं कुछ अलग तरीके से व्यक्त करूं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अप्रोच बिल्कुल वही है, कि ना कोई बैगेज है हमारे ऊपर, ना कोई योजना की प्लानिंग है हमारे ऊपर कि हम इसको इस तरीके से इस मोमेंट में ये होना चाहिए, और उस मोमेंट में आप वो चीज़ कर देते हैं 100%, तो अपने आप में मैजिकल हो जाती है. They are becoming more accepting. Yes, absolutely. Because I think it is not कि suddenly women centric film है और ये context और सबने बोला कि हम देखना चाहते हैं. सबसे पहले एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, और जब एक अच्छी कहानी जो होती है उसमें लेयर्स होते हैं, कोई एक डायरेक्शन नहीं होता, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो आपस में टकराते हैं और इंटरेस्ट पैदा होता है ऑडियंस का, और ये फिल्म मेकर यूज़ करता है एज ए टूल. बहुत सारा जो रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो 1970 के दशक में जब इमरजेंसी थी, वो बहुत ही ऐसा हिस्ट्री है जो हमें पता है. चंबल ऐसी जगह है जो बहुत यूनिक है, लेकिन जब इस समय में आप ऐसी कहानी बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आज बॉम्बे में रह के रिलेट कर सकता हूँ जो फिल्म में हो रहा है. सो यू यूज द कॉन्ट्रास्ट टू पंक्चुएट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट हैज़ नॉट चेंज्ड विद, और इट डजंट चेंज विद स्पेस एंड टाइम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मल्टीपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एंड थैंकफुली in multiple of contexts we have women always, so there are good scripts that are made, and since they are layered multiple contexts, so women are there as a very very important driver of the film. So that's a great change that we see in India. मैं डोमिनेंस में विश्वास नहीं रखता,
क्योंकि मेरा ये मानना ही नहीं है, ये सिर्फ हम और आप डिस्क्राइब करने के लिए वुमेन सेंट्रिक कह देते हैं या मेल सेंट्रिक कह देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लाइफ सेंट्रिक होती हैं चीज़ें। और मैन और वुमेन ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिस्पर्धी नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा इस दृष्टिकोण से सोचना कि ये वीमेन ओरिएंटेड है या ये मेल ओरिएंटेड है, मैं अभी तक इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी फिल्म में पुरुष किरदार होते हैं, स्त्री किरदार होते हैं, और उन किरदारों के जीवन की एक कहानी होती है जिसके माध्यम से आपको समाज का सिनेरियो नज़र आता है। तो वैसी फिल्में अगर देखा जाए तो वैसी फिल्में बनने का दौर हुआ है कि जहाँ पे और लार्जर स्केल पर, कि अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई बन के आई है, तो वो आपके इतिहास के चरित्र का एक हिस्सा है जिसे लोगों ने किताबों में या स्कूलों में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब उसको सेल्यूलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया में हम उसको पहुंचा रहे हैं। लेकिन सेम टाइम पद्मावती भी आई, तो अगर उसमें रतन सिंह या खिलजी को निकाल दें तो क्या निकाला जा सकता है? रानी लक्ष्मीबाई जी के फिल्म में से तात्या टोपे या सिंधिया या मर्दान सिंह इनको निकाल दें तो क्या इनका जीवन में इम्पोर्टेंस नहीं है, या उनके पिता के किरदार को? तो तात्पर्य ये है कि ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम और आप सिर्फ इनको डिफाइन करने के लिए या ये कहें कि बाजारीकरण के कारण, बाजार में किसी चीज़ को बेचना है तो उसी चीज़ के ऊपर कभी उसके ऊपर एक लेवल हमने ये लगा दिया कि वीमेन सेंट्रिक है, दूसरा लेवल उठाया कि अब वीमेन बहुत चल गई है तो अब मेल सेंट्रिक कर दो इसको, उसका एक सील ठोक दिया। विषय वही है, कंटेंट वही है देखा जाए। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि मेरा यही मानना है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है।